Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing well. Today in this video, I am going to tell you about how to prepare English for any competitive examination within 3 to 4 months. See, I will teach you this subject in English. What is English? So, Hindi and English. Some of you might say that why am I teaching you English subject in Hindi? So see, there are two prominent reasons. The first reason is that the students who are preparing for competitive examinations are mainly from northern India, and in northern India the students understand English grammar rules and vocabs in Hindi in a better way than in English, right? This is the first reason. Second reason is that examiner wants to check your grammar knowledge, not your spoken. So these are the two prominent reasons why I will teach you this subject in English. Apart from this, lots of students ask me how do I teach both the subjects maths and English in a better way. So see, for your kind information, I have cleared SSC CGL examinations and scored 98 percentile in CAT examination. And to qualify these two examinations, a student must have lots of knowledge in these two subjects, maths and English. So that's why I did hard work and accumulated a huge amount of knowledge in these two subjects. So that's why today I am able to teach you both the subjects with equal efficiency. I hope you have got your answer. So shall we start our journey of learning English? So see, in English there are three sections. These are vocabulary, grammar and comprehension ability. Let us discuss one by one, starting from vocabulary. So in vocabulary sections, mainly 5 types of questions are asked. These are synonyms, antonyms, one word substitutions, idioms and phrases, spelling check. These are the 5 types of questions which are mainly based on vocabulary. It means if you have good command over vocabulary, then only you can answer these type of questions. Let us discuss one by one. First, synonyms. What is synonyms? So as the name suggests, synonyms, there are two root words. There onyms means name and syn means same. तो कहने का मतलब ये है, synonyms का मतलब है same name. जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, बोलते हैं ना समानार्थी शब्द, मतलब समान अर्थ वाले शब्द. तो कहने का मतलब ये जो वर्ड दिया है ना सोल, आपको ये बताना है ये जो सोल वर्ड है, ये जो चारों ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा वर्ड जो होगा वो इसका सिनोनिम होगा, मतलब समान अर्थ का कौन सा शब्द होगा. तो आप बताओ कि इस क्वेश्चंस को आंसर करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वोकैबुलरी पे अच्छी कमांड रहेगी, देन ओनली यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट. सो ये हो गया हमारा सिनोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन. सिमिलरली हमारा दूसरा जो होता है एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन. इन एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन आपको जो एग्जामिनर होता है एक वर्ड देता है और बोलता है क्या, देखो ये क्या बोला है, डायरेक्शन, जो मतलब ये डायरेक्शन ये एग्जामिनर के द्वारा दिया जाता है और बोलता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. मतलब ये जो वर्ड है इसका अपोजिट बताना है, मतलब उल्टा, हिंदी में बोलते हैं ना विलोम शब्द, तो वो बताना है आपको. तो आप कब बता पाओगे? ऑब्वियसली अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता रहेगा और जो चारों वर्ड दिए उनका मतलब पता रहेगा तभी तो आप बता पाओगे. तो अगेन यहाँ पे एग्जामिनर क्या टेस्ट करना चाह रहा है, तो आपकी वोकैबुलरी की नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है, राइट. तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है, तो इसे हिंदी में बोलते हैं ना अनेक शब्दों के एक शब्द. मतलब ये एक सेंटेंस दिया है, आपको बताना एक वर्ड में इसे क्या बोलेंगे. तो अगेन आप देखो यहाँ पे ये 4 वर्ड हैं, इस 4 वर्ड का ही तो इनमें से किसी एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दे रखा है. तो अगेन ये वोकैबुलरी ही तो है. अगर अब बताओ, अगर आपको इन चारों वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आप कैसे बता पाओगे, राइट. तो इसीलिए ये वोकैबुलरी सेक्शन में भी आता है. चलो नेक्स्ट वन हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेज. इडियम्स एंड फ्रेजेज का क्या है, तो ये बेसिकली होती है कहावतें. कहावतें देखते हो आप, जो हिंदी में बोलते हैं, जिसे बोलते हैं 9 2 11 होना, ये कहावतें हैं. अब कहावतों में क्या होता है, तो जो उनकी लिटरल मीनिंग होती है और जो एक्चुअल मतलब होता है दोनों अलग अलग होते हैं. तो ये एक तरह की वोकैबुलरी ही है. मतलब इसमें आपको जो भी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग को आपको याद करना होता है. जैसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, देखो यहाँ पे जो लिखा है ना रेड कलर में, एट हर फिंगर टिप्स, आपको बताना है इसका क्या मतलब है. अब आप देखोगे ना इसका जो मतलब है एट हर फिंगर टिप्स का, जो इसका लिटरल मीनिंग होगा, लिटरल का मतलब शब्द के अर्थ के अनुसार, और जो एक्चुअल मतलब होगा दोनों अलग अलग हैं. एट हर फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेडली अवेलेबल. लेकिन अगर ये हो गया इसका मतलब, लेकिन लिटरल मीनिंग से जाओ शब्द के अर्थ के अनुसार, तो उसके फिंगर टिप्स पे, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बना, सेंस ही नहीं बना. जैसे 9 2 11, अब 9 2 11 का तो मतलब 9 2 11 ही होता है, लेकिन एक्चुअल मतलब तो वो नहीं होता ना. जस्ट लाइक दैट वे,
राइट। एट हर फिंगर टिप्स का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना, कि जब भी कोई पूछे तो उसके बारे में आप तुरंत बता दो, उसे क्या बोलते हैं, एट हर फिंगर टिप्स, राइट। ओके, नेक्स्ट वन देखो, तो ये हमारा था क्या, ये था हमारा इडियम्स एंड फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन होता है, जो हमारा बेस्ड होता है किस पे, वोकैबुलरी पे, वो है स्पेलिंग चेक। आपको स्पेलिंग चेक में क्वेश्चन ऐसे देता है, देखो कैसे दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आप बताओ इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कब बता पाओगे, जब आपने इस वर्ड को पहले देखा होगा, इसकी मीनिंग पता होगा, तभी तो आप बता पाओगे। आप पहली बार किसी वर्ड को देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बता पाओगे उसका कौन सा स्पेलिंग होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे आपकी क्या चेक हो रही है, वोकैबुलरी। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए पांचों टाइप के, वो प्योरली किस पे बेस्ड हैं, आपकी वोकैबुलरी पे। अगर आपकी वोकैबुलरी की नॉलेज है देन ओनली यू कैन आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो जैसा मैंने बताया था आपको, ये 5 टाइप के क्वेश्चन कौन से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग चेक। आई होप आपको इन पांचों के बारे में पता चल गया होगा कि क्या होते हैं और इनको आंसर्स करने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो क्या चीज़ चाहिए आपकी, वो चाहिए आपकी वोकैबुलरी पे कमांड। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग, कि जितना ज़्यादा आपको वर्ड याद रहेंगे उतना ज़्यादा आसानी से आप इन टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा सेक्शन क्या था, वो है हमारा दूसरा सेक्शन ये ग्रामर का। देखो ग्रामर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस और नरेशन। आपको देखो एरर डिटेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एज द नेम सजेस्ट एरर डिटेक्शन मीन्स डिटेक्ट का मतलब ढूंढना और एरर का मतलब एरर, यानी आपको ये सेंटेंस गिवन है, इसमें आपको ये देखना है कि ग्रामर के अनुसार क्या एरर है। आप बताओ ग्रामर के अनुसार एरर कब ढूंढ पाओगे, जब आपकी ग्रामर की नॉलेज होगी, राइट। तो एग्जामिनर यहाँ पे आपकी इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज चेक करना चाह रहा है, राइट। ओके, सेकंड जो टाइप का है सेंटेंस जो ग्रामर पे बेस्ड है, दैट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, तो इस सिंपल ये आपको एक सेंटेंस दिया है, इसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट को अंडरलाइन कर देगा या बोल्ड में कर देगा, और एग्जामिनर बोलेगा कि आप बताओ कि जो ये अंडरलाइन पार्ट है क्या वो ग्रामेटिकली सही है। अगर मान लो ग्रामेटिकली सही होगा तो आपको आंसर करना है नो इम्प्रूवमेंट। अगर वो ग्रामेटिकली सही नहीं है तो बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं उन्हीं में से कोई ना कोई सही वाला होगा। अब ये चीज़ पता करने के लिए क्या नॉलेज की ज़रूरत है, वो है आपकी ग्रामर की नॉलेज, राइट। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपकी ग्रामर की नॉलेज पे बेस्ड होता है, दैट इज वॉइस। अब ये वॉइस में जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछता है कि आपको चेंज दी वॉइस, मतलब यहाँ पे ये या तो एक्टिव में दे देगा और उसके लिए 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसका आप पैसिव बनाओ, या तो पैसिव में देगा और एक्टिव में पूछेगा। तो ये होते हैं हमारे वॉइस बेस्ड क्वेश्चन। अगेन हियर क्या चेक की जा रही है, आपकी ग्रामर की नॉलेज चेक की जा रही है। लास्ट वन जो क्वेश्चन है जो ग्रामर बेस्ड पूछा जाता है वो होता है नरेशन। आपने नरेशन के बारे में पढ़ा होगा। नरेशन में 2 होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको क्या करेगा एग्जामिनर, डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस दे देगा और बोलेगा इसको इनडायरेक्ट में बदलो। जैसे देखो यहाँ पे ये आपको डायरेक्ट स्पीच का देखे इनडायरेक्ट का पूछ रहा है, ऐसे आपको डायरेक्शन एग्जाम में गिवन रहते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ गए होंगे कि ये जो अब अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को आंसर करना पर्टिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। अगर ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है नहीं कर पाओगे, राइट। सो ये जो मैंने चारों टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे, ये यहाँ पे देखो आप, ये ग्रामर में बताया था ना, ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, एरर डिटेक्शन, वॉइस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और नरेशन। यहाँ पे क्या चेक की जा रही है आपकी, ऑब्वियस सी बात है ग्रामर की नॉलेज, ठीक है। तो आपकी ग्रामर की नॉलेज यहाँ पे चेक की जाएगी। अब जो तीसरा वाला सेक्शन था वो कौन सा है उसको देखो, वो है हमारा कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी का। अब कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी में देखोगे ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं, सेंटेंस अरेंजमेंट। इसको जंबल सेंटेंसेस भी बोलते हैं, कई लोग पैरा जंबल भी बोलते हैं, कई लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में PQRS भी बोलते हैं, राइट। चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, तो आपको ये पैसेज गिवन होते हैं और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। देखो ये क्वेश्चंस है, आपको इन पैसेज को पढ़कर इन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। अब देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या चेक करना चाह रहा है, आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल। कॉम्प्रहेंशन का क्या मतलब होता है, कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि आपकी इस लैंग्वेज के प्रति अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है। दैट इज ये कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो यहाँ पे बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपकी क्या चेक होने जा रही है, रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल अगर आपकी है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, राइट।
फिर हमारा जो दूसरा टाइप का होता है क्वेश्चन वो होता है क्लोज टेस्ट, जो कि कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी पे बेस्ड होता है। चलो उसको देखते हैं क्लोज टेस्ट क्या होता है। तो देखो ये है हमारा क्लोज टेस्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या है, तो एक ये पैराग्राफ दिया है और इसमें कुछ देखो ब्लैंक्स दे रखे हैं, पहला ब्लैंक्स है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। इन ब्लैंक्स को भरने हैं और उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। देखो पहले ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शन, तीसरे ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शन, ऐसे करके इन ब्लैंक्स में से भरना है। आप बताओ इन ब्लैंक्स में से कब भर पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी रीडिंग स्किल रहेगी तो आपको कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इस कंटेक्स्ट में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, तब फिर आप वहां पे फिल कर पाओगे। तो अगेन एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है, तो आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल मतलब रीडिंग स्किल, राइट। चलो लास्ट वाला जो सेक्शन हो क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट, इसे पैराजंबल भी बोला जाता है। तो देखो इसके लिए आपको देखो एग्जामिनर क्या करता है, ये डायरेक्शन ऐसे गिवन रहता है, इसमें क्या करेगा, पहला वाला ये सेंटेंस और ये लास्ट वाला, इसको क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, और बाकी जो उसके पार्ट होते हैं उनको क्या कर देता है, जंबल कर देता है, राइट। इस पे देखोगे जो क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं। एक तो मान लो कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपको पता है सेंटेंस से मिलकर बना होता है, तो उन सेंटेंसेस को ना, उसमें से एक सेंटेंस को पहला फिक्स कर दिया, लास्ट फिक्स कर दिया, और बाकी को जंबल कर देता है, राइट। अब उन जंबल को आपको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। जंबल का मतलब आगे पीछे कर देगा, इधर उधर। अब उसके लिए आपको ये ऑप्शन दे रखा है, आपको क्या करना है, उनमें ऑप्शन के सहायता से आपको उसको अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है, चेक करना चाह रहा है आपकी रीडिंग स्किल। तो ये तो एक टाइप का रहा जो पैराग्राफ बेस्ड होता है। दूसरा होता है सेंटेंस बेस्ड। सेंटेंस बेस्ड में एग्जामिनर क्या कहता है, एक सेंटेंस रहता है उसको पार्ट में ब्रेक कर देगा, और पार्ट में ब्रेक करके उसको नाम दे देगा PQRS, और फिर अगेन उसको जंबल कर देगा, ऐसे ही ऑप्शन बना देगा। फिर आपको उसको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है लॉजिकल ऑर्डर में, राइट। तो ये होते हैं हमारे तीनों टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, सेंटेंस अरेंजमेंट और ये क्लोज टेस्ट और ये हमारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो कि बेस्ड होते हैं किस पे, कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी पे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दोगे ना, अगर इंग्लिश पूछी जाएगी तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, राइट। अब चलो अब देखते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट को यानी इंग्लिश सब्जेक्ट को अगर हमें मास्टरी हासिल करनी है इस सब्जेक्ट पर, तो हमें क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मैं बात करूं इनमें, शुरू में जैसा कि मैंने बताया था कि 3 सेक्शन होते हैं, इन तीनों सेक्शन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन है, विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आउट ऑफ दीज 3। तो अब ऑब्वियस वे में बता दोगे, अगर थोड़े बहुत भी इंग्लिश की नॉलेज होगी, समझ होगी, तो आप बताओगे इसमें क्या है, वोकैबुलरी। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी पे कमांड, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश पे कमांड, राइट। क्योंकि आप देखोगे इन तीनों सेक्शन में कहीं ना कहीं वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो प्योरली बेस्ड होते हैं वोकैब की नॉलेज पे, बट यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जो देखोगे कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी में, तो उसके बाद से इसमें सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है वोकैब का। क्योंकि कोई भी पैराग्राफ है उसको समझने के लिए आपकी वोकैब पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसको समझ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे तो इसकी नॉलेज की ज़रूरत है ही है वोकैबुलरी की, और यहाँ पे है ही है। अब बात करते हैं ग्रामर में। तो ग्रामर में भी देखोगे ना, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, राइट। वर्ड्स के बीच में डिफरेंस, जो वर्ड जिस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है वहाँ ना देकर दूसरा दे देता है, तो वहाँ पे वोकैबुलरी चेक कर देता है कई बार, इवन ग्रामर के क्वेश्चन में भी। और अगर मान लो वो वोकैबुलरी नहीं देता है, आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देता है, तो वहाँ पे भी देखोगे सेंटेंस को पहले आपको समझना होता है, और पढ़ के समझने के लिए अगेन वहाँ पे आपकी वोकैबुलरी की नॉलेज चेक की जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है वोकैबुलरी। है तो वैसे ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अब मैं आपको बताने चलता हूँ कि हम कैसे ये जो तीनों सेक्शन हैं उनमें से कैसे इन तीनों सेक्शन पे हम मास्टरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वोकैबुलरी की। ये जो तीनों सेक्शन है इन पे मैं स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज की क्लास में थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी इनको सेपरेटली अलग से वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, राइट। सबसे पहले बात करते हैं वोकैबुलरी वाले सेक्शन को कैसे इंप्रूव करना है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ वोकैबुलरी वाले सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए मैं आपको 2 टेक्निक्स बताऊँगा। ये जो 2 टेक्निक्स हैं, एक है PMS मेथड और एक है रूट वर्ड मेथड। देखो, अगर मैं बात करूं आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, तो क्या इंप्रूव करनी है,
तो बेसिकली वोकैबुलरी मैंने बोला इंप्रूव करनी है, तो वोकैबुलरी में क्या इंप्रूव करनी है, तो आपको इसकी लर्निंग इंप्रूव करनी है। कई सारे बच्चे होते हैं या कई सारे टीचर्स आप देखोगे जब पढ़ाते हैं ना तो क्या करेंगे ना, वोकैबुलरी को ऐसे पढ़ाते हैं, कोई वर्ड दिया उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख देते हैं, उसकी मीनिंग लिख देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, फिर सिनोनिम मतलब उसके सिनोनिम्स लिख देते हैं, उसके एंटोनिम्स लिख देंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, ऐसे करके पढ़ाते हैं। ये जो नॉलेज है, जो ये पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल सही है ये, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए ना तो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो गया, क्योंकि पहले जो टीचर्स जो पढ़ाते थे इस वे में ना वो अच्छे तरीके से ये बताते थे, क्यों, और वहाँ पे ज़रूरत भी थी पहले, क्योंकि उस समय ना इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, हमारे पास गूगल नहीं था। आज अगर आपको कोई भी वर्ड का सिनोनिम चाहिए, एंटोनिम चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए, अगर मतलब पता होना चाहते हो आप करना, तो आप कोई भी गूगल पे टाइप करो वर्ड, आपको सब पता मिल जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ आपको नहीं बताता है गूगल। वो क्या चीज़ है, वो है कि आप कैसे इस वर्ड पे मास्टरी करोगे। मास्टरी इन द सेंस याद कैसे करोगे। आपको वर्ड का मतलब तो बता देगा, जैसे कि आजकल जो या पहले जो टीचर्स बताते थे, या आज भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं ऑर्थोडॉक्स तरीके से। मेरा मानना है वैसे तरीके से पढ़ाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स तरीका है। जो मेन चीज़ जब वो ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल पे, तो आपको क्या ज़रूरत है उस तरह से पढ़ाने की। आप उसको ये बताओ बच्चों को कि आखिर जो भी वर्ड्स हैं उनको आप मेमोराइज कैसे करोगे, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अब, राइट। तो मैं आपको ये जो 2 मेथड बताऊंगा ना, उन मेथड्स में यही बताऊंगा कि आप वर्ड्स को मेमोराइज कैसे करोगे, राइट। वो क्या तरीके हैं, वो कैसे करेंगे, वो मैं इसको सेपरेटली अलग से पूरा कॉम्प्रहेंसिवली समझाऊंगा। और इवन आप देखोगे क्लास में मैं आपको सिर्फ 20 से 30 मिनट की क्लास में देखना मैं कितने सारे वर्ड आपको याद करा दूंगा। और मैंने आपको क्या बताया, वोकैबुलरी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस वर्ड का मीनिंग ये, इसका सिनोनिम ये, इसका एंटोनिम ये होता है। वो तो आपको कहीं भी बुक में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। आप बोलोगे मैं उस वे में भी पढ़ा सकता हूँ, बट मेरा एज ए स्टूडेंट मैंने देखा और एज ए टीचर की इंपॉर्टेंस होती है क्या, वर्ड्स को याद करना। इसीलिए मैं बच्चों को याद कराने की टेक्निक बताता हूँ। वो तो आप खुद ही कर सकते हो गूगल करके। तो वो टेक्निक्स क्या है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस मैं करूंगा, आगे बताऊंगा। देखो ये जो रूट वर्ड के लिए ना एक बुक आती है वर्ड पावर में डीजी। आप चाहो अगर आपकी ऑलरेडी अच्छी है वोकैब तो आप इन बुक को पढ़ सकते हो, आप इनमें रूट वर्ड मिल जाएंगे। ये पीएमएस मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना तो आपको कहीं किसी गूगल पे सर्च कर लोगे ना मिलेगा, ना किसी यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया होगा। आप चाहो तो पूरा यूट्यूब पर सर्च करके देखना पीएमएस मेथड। ये मेरा बनाया हुआ मेथड है। मैंने इसी मेथड का यूज करके और मैंने कैट में इतने स्कोर लाए और सीजल मैंने क्वालिफाई किया। आपको पता है मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, 12th तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाया, फिर मैं ग्रेजुएशन में आया तो मेरे में इंग्लिश था। तो मैंने कैसे, और फिर मैं आया तो कैट की तैयारी किया, तो उसमें कैट के एग्जाम में इंग्लिश बहुत ही हाई लेवल की आती है। तो वहाँ पे उस लेवल को मैच करने के लिए मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की वो मैं आपको बताऊँगा, राइट। कैसे मैंने वर्ड्स को याद किए वो इसी टेक्निक का यूज करके मैंने याद किया। जब मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा ना पीएमएस मेथड, आपको पता चल जाएगा कि यस ये होता है असली मेथड, और वाकई में इस मेथड का यूज करके हम बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। अगर मैं आपको रफली बताऊं कि कितने वर्ड्स याद करने होते हैं, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम को मतलब क्वालिफाई करने के लिए रफली आपको 10,000 वर्ड के करीब याद करने होते हैं। मैं आपको हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो 6-7 हज़ार वर्ड अगर अच्छे लेवल के मैं बता रहा हूँ याद है ना, तो आसानी से वो क्लियर कर सकता है। अब सोचो 6-7 हज़ार वर्ड याद करना मुश्किल टास्क है, इतना आसानी से तो कर नहीं सकते हो। तो उन्हीं वर्ड्स को कैसे याद करेंगे ये मेथड्स निकाला गया। और मैं आपको स्पेशली, ये तो मैंने नहीं निकाला, ये तो इस बुक में दिया गया, मैं ये बताऊँगा इस मेथड का यूज़ कैसे करना है, राइट। और एक चीज़ आती है बच्चों के दिमाग में कि सर कितने वर्ड्स याद करने हैं और कौन से वर्ड याद करने हैं। तो देखो आपको ये जो ये वर्ड है ना, ये इस बुक में जितने वर्ड्स हैं अगर आप इनको याद कर लेते हो ना, तो समझ लो कि आपकी इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कितने वर्ड देखे हैं, 20,000 वर्ड्स, लेकिन इन 20,000 वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड रिपीटेड हैं, राइट। अब वो रिपीटेड वाले को छोड़ दिया जाए तो करीब 10,000 के करीब ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना होता है, राइट। अब वो कैसे याद करना है मैं आपको समझाऊंगा। वो आप जब आगे ये जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा ना वोकैबुलरी पे कि कैसे आपको वोकैबुलरी याद करनी है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो जो मैं तरीका बताऊँगा उससे आप आसानी से याद कर लोगे, ठीक है। तो इसके बारे में वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो ग्रामर को कैसे इंप्रूव करना है। तो देखो ग्रामर को जो इंप्रूव करने का तरीका है ना, मैं बच्चों को मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, तो बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ, तो बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती है ना ग्रामर में, वो ये आती है कि बच्चे कहते हैं सर इतने सारे रूल्स हैं, सब कंफ्यूज हो जाता है,
अब कैसे उसको हम कैसे करेंगे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि सब कोई टीचर्स होता है, पढ़ाता है तो रूल्स को याद करा, बोलता है ये रूल पढ़ लो, ये रूल पढ़ लो, वो रूल पढ़ लो, तो इतने सारे रूल्स हो जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए ना मैंने एक तरीका सोचा, वो जो भी वो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वो बेसिकली पढ़ाते हैं फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर में ना रूल्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर के थ्रू ना मैं आपको रूल्स को रटाऊंगा नहीं। अगर मैं बोलूं आपको कि 100% ग्रामर है ना, तो उसमें से 5% ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको रटनी पड़ती हैं, बट 95% चीज़ें ऐसी हैं अगर जिसको ग्रामर की समझ है वो आपको समझा सकता है, और आप उसको रटना नहीं पड़ेगा, वो आप लॉजिकली समझ सकते हो। अब आप सोचो 5% चीज़ें, तो अब बोलोगे 5% चीज़ें क्यों याद करनी होती है? तो क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है और भाषा में ना वेरिएशंस होते हैं, तो वहाँ पे आप जब लॉजिक लगाते हैं तो वो वेरी करता है, इसीलिए हमें ना उन चीज़ों को याद करना पड़ता है एज इट इज। तो वहाँ पे लॉजिक नहीं काम करता, लेकिन 95% चीज़ों में लॉजिक करता है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब 95% जब कर लोगे तो सोचो 5% तो कोई भी कर सकता है। तो वो मैं मेथड किस मेथड के थ्रू बताऊंगा, तो ये जो दो मेथड हैं, एक है फंक्शनल ग्रामर, दूसरा है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। क्या होते हैं जब मैं डिटेल में आपको ये सेक्शन डिस्कस करूंगा ना ग्रामर वाला, तो वहाँ पे बताऊंगा। और एक चीज़ और, अगर आपको मैं बोलूँ कि प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये चाहो तो ये बुक्स को आप ले सकते हो। ये बुक्स हैं, ये देखो, ये आपकी ये इंग्लिश ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के एसपी बक्स की बुक है, ये भी ले सकते हो आप। ये बुक है, ये ले सकते हो, या मिरर ऑफ कॉमन एरर ले सकते हो। इन तीनों बुकों से ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, राइट। बट इसमें ग्रामर रूल्स भी दिए हैं, लेकिन उसमें लॉजिकली समझाया नहीं गया कि कैसे आपको इसको करना है। मैं जो बताऊंगा लॉजिकली समझाऊंगा कि इसको कैसे ध्यान पे रखना, कि ताकि कभी भूले मत और कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, राइट। चलो, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, और नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या मेथड होते हैं, फंक्शनल ग्रामर, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, राइट। चलो, नेक्स्ट हम आते हैं जो है थर्ड सेक्शन, इसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो, अब ये थर्ड सेक्शन में दो तरीके के कैटेगरी के बच्चे आते हैं। एक आते हैं वो जो हिंदी मीडियम से प्रिपेयर किए हैं, और एक जो वो आते हैं जो इंग्लिश मीडियम से। और इंग्लिश मीडियम में ही वो बच्चे जिनकी एवरेज इंग्लिश है। तो देखो, जिनकी इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़े हैं, जिनकी एवरेज इंग्लिश है, आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हो न्यूज़पेपर पे, और आप ये द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद द हिंदू पढ़ सकते हो, राइट। लेकिन जो हिंदी मीडियम्स के बच्चे हैं और जिनकी इंग्लिश वीक है बहुत, तो उनको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मॉरल स्टोरीज जो होती है ना, उस बुक को पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको नॉवेल्स कोई पढ़ सकते हो, राइट। फिर उसके बाद से नॉवेल्स एक नहीं कई सारी पढ़नी पड़ेगी, वैसे ही ये आपसे उसी तरह से उसके बाद से आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे, फिर आपको न्यूज़पेपर पे आना है। इतना करोगे तब जाके आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल पे कमांड बनेगी। उसमें भी सेलेक्टिवली क्या क्या पढ़ना है, जब मैं ये कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी वाला सेक्शन डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, और मैंने कैसे अपना इंप्रूव किया था वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वोकैबुलरी को याद कैसे करना है। ध्यान पे रखना कि इंग्लिश को इम्प्रूव करना है आपको, तो वोकैबुलरी पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। जब तक आपकी कमांड वोकैबुलरी पे नहीं है, कभी भी आप इंग्लिश पे अच्छा कमांड नहीं बना सकते हो, राइट। तो मैं उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे वोकैबुलरी को याद करना है। वो मेथड देखना बहुत ही यूनिक मेथड है। उसी तरीके से जब ग्रामर वाला मेथड लेके आऊँगा, ग्रामर को कैसे आपको अपना इंप्रूव करना, वो भी देखना यूनिक मेथड है। कहीं भी अगर आपको कोई यूट्यूब पर मिल जाए तो मेरे से बात करना, ठीक है। चलो, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। बाकी जो चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।